Hello, my friends. Hello, my dear viewers. I welcome you all on your own live platform of Target On and Target with Alok. And I also pay my hearty thanks to all of you to avail the privilege to be live before you. My dear friends, long awaited notification of LT has come at last. Now, with its notification, the notification poses a great challenge for us, not only for those who are aspiring for TGT or LT, but it also poses a great challenge for the teacher who are going to teach this very examination to be conducted in the upcoming months related to LT. In this connection, I want to discuss the syllabus pattern, exam pattern, as well as how many segments are there in your examination of LT. So without any further delay, let's have a glance at the language segment. As far Hindi is concerned, the great erudite of Hindi, Pandit Amresh Bhatt, will be before you. He will teach Hindi. As for English, IMSN Biswa will be live every day before you, and Sanskrit will be taught by Anil Mishra ji. These two personalities have earned a lot of name and fame for last 20 years related to their subject. As far the syllabus and exam pattern of LT is concerned, so let's have a glance at the board. LT exam pattern, you are well aware that the exam will be conducted in two steps. The first step is preliminary test, that is like a screening test. And second segment is mains, that is written one. जो previous है, the question will be asked MCQ, multiple choice questions. Time allotted is 2 hours. 2 घंटे का वक्त दिया गया है. It comprises 2 sections. One is GS portion that contains 30 questions and subject that contains 120 marks questions. अगर इन 150 questions की बात की जाए तो each question is allotted 2 marks. प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं. तो 150 into 2, that is the total paper of preliminary test will be of 300 marks. कुल जो है 300 अंकों का ये प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा. अब जरूरी ये है कि आउट ऑफ 300 मार्क्स हाउ मेनी मार्क्स आर टू बी स्कोर्ड बाय डिफरेंट कैटेगरीज. तो 40% आउट ऑफ 300, that is 120 marks is necessary for general and OBC candidates, and as far SC and ST candidates are concerned, they are required to obtain 35% of the total mark, that is 300. तो 300 का जो है 35% ये SC और ST कैंडिडेट के लिए स्कोर करना आवश्यक है. But my dear friends, the real game lies in this segment, that is the written portion, or you can say the real game lies in mains examination. Mains examination is also divided into 2 segments, that is portion A and portion B. पोर्शन ए में कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और उसकी जो वर्ड लिमिट होगी 125 वर्ड्स। प्रत्येक प्रश्न के लिए 125 अंकों की सीमा निर्धारित की गई है और हर क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स हैं। हर प्रश्न पर जो आपको अंक मिलेंगे वो 8 मार्क्स के हैं। 10 क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड, 10 क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना होगा। तो इफ भी मल्टीप्लाई 10 into 8 देन टोटल मार्क्स विल बी 80। 80 अंकों का जो है ये 10 प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक हैं, तो टोटल कुल कितने हो जाते हैं? 80 मार्क्स। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होंगे, वर्ड लिमिट इसकी होगी 200 वर्ड्स की, एंड 12 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। हर प्रश्न के लिए जो है कुल 12 अंक हैं, तो 12 10 120 मार्क्स। टोटल अगर देखा जाए तो 120 प्लस 80 दैट इज 200। अब नाउ व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी टू गेट आवर सेल्फ स्क्रीन आउट फ्रॉम दिस एमसीक्यू पोर्शन? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, द क्वेश्चन इज इवन द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन इज मोस्ट बैलेंस्ड। सबसे ज्यादा एज सून एज द नोटिफिकेशन वाज आउट, आई केम थ्रू the exam pattern through notification. Really, it made me hilarious and my student, offliner students. It was really a matter of pleasure that the commission has incorporated such a balanced paper. What is the aim? Just to screen out the calibrated and efficient teacher who are really to be called a good teacher, who can do justice for their students and justice to their morality being a teacher. बेहद अच्छा जो है सिलेबस है। अब जरा ये देख लिया जाए कि 300 अंक में से अगर जनरल और ओबीसी का कैंडिडेट है जिसको केवल 40% स्कोर करना है, अगर थोड़ा सा थ्रस्ट कोई कैंडिडेट लगाता है, if he maintains a bit sincerity and if he is dedicated to crack this portion, it is very easy for him to do so. अब आप ये बताइए कि 300 में से 120 अंक ले आना एक सिंसियर और डेडिकेटेड स्टूडेंट के लिए कितना आसान है। So is the case with categorized students, that is for SC and ST. अगर वो थोड़ा सा सिंसियर हैं, थोड़ा सा अपने एग्जाम को लेकर के गंभीर हैं, अपने करियर को लेकर के संजीदा हैं, सो दे कैन डू दिस वेरी इजली। मैंने जो थोड़ा सा कहा है कि ये जो मेन पोर्शन है दैट पोजेज अ चैलेंज बट नॉट सो ग्रेव चैलेंज, थोड़ा सा चुनौती तो है। दिस सेक्शन is the most important of PLT examination because this portion comprises the caliber, efficiency, depth of knowledge of a teacher. कि एक टीचर अगर भाषा के साथ खेलना जानता है, अगर उसका सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पकड़ है, अगर वो वेल रेड है, तो अपने स्टूडेंट को ये पोर्शन क्रैक करवाने में काफी मददगार हासिल हो सकता है। खैर, इसके बारे में अगर एफिशिएंट टीचर है तो वो ये बता सकता है कि जितने भी आपके सिलेबस दिए हुए हैं उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कैसे कराई जा सकती है। संजीदा टीचर इस बात को जो है जरूर जानता है, और जो कमीशन के एग्जाम पैटर्न से परिचित हैं वो निश्चित रूप से अपने विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से गाइड कर सकते हैं। नाउ इट इज इंपेरेटिव फॉर अस टू हैव ए ग्लैंस एट द सिलेबस। ये रहा आपके सामने एलटी ग्रेड का सिलेबस। क्या क्या चीजें हैं इसमें? पहला तो लिटरेरी मूवमेंट सेगमेंट है, थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा।
और एक मैं झलक भी देना चाहूंगा कि किस तरह से रिटन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिटरेरी मूवमेंट में आपका रेनेसां है, रिफॉर्मेशन है, मेटाफिजिकल नियो क्लासिसिज्म है, प्री रेफेलाइट मूवमेंट है, मॉडर्निज्म है, इम्प्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, सररियलिज्म और फेमिनिज्म है। इतने जो हैं लिटरेरी मूवमेंट को कमीशन ने आपके इंग्लिश पेपर में रखा है। ये आपके स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि प्री में भी और मेंस में भी। प्री में तो एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी ही जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जिसकी डिटेलिंग आपको करनी होगी। शॉर्ट अगर क्वेश्चन है तो 125 वर्ड्स में, और अगर लॉन्ग है तो 200 वर्ड्स में। जस्ट फॉर स्पेसिमेन आई राइट ए क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे गिव या थ्रो ब्रीफ लाइट, थ्रो brief light on Renaissance movement, पुनर्जागरण आंदोलन पर एक प्रकाश डालिए। और अगर ये दे दिया गया कि विद इन 125 वर्ड्स, तो इसको आपको कैसे अटेम्प्ट करना होगा, ध्यान रखिएगा। रेगुलर क्लास के बाद शुरुआत में यहीं से करूंगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी और रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगी। रेनेसां की ओरिजिन क्या है, सबसे पहले तो मीनिंग क्या है, रेनेसां की ओरिजिन कहां से होती है, हाई रेनेसां क्या है, और कौन कौन से रेनेसां मेन है, इसका जो है इम्पैक्ट क्या पड़ता है, न केवल मानव जीवन के ऊपर बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन के संपूर्ण पक्ष को यह किस तरह से प्रभावित करता है। तो सारी चीजें आपको कंपैक्ट फॉर्म में 125 वर्ड में लिख देनी होगी। लेट्स गो फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द सिलेबस, लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स में आपके सनेट, एलिजी, ओड, बैलेट, एपिक, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, सैटायर और एसे, इतने पोर्शन है, जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ सनेट, हिस्ट्री ऑफ एलिजी, ओड, हिस्ट्री ऑफ बैलेट, हिस्ट्री ऑफ एपिक्स, एंड व्हाट आर डिफरेंट एपिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज, देयर राइटर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, व्हाट इज सैटायर, वेयर इट वाज ओरिजिनेटेड, और ऐसे की शुरुआत कहां से है, कौन फादर ऑफ ऐसे है और कौन फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे है। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ, गिव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सनेट, हिस्ट्री ऑफ सनेट की ओरिजिन और इसके इतिहास के बारे में, बाय होम Was it introduced into English literature? तो अगर देखा जाए तो 125 अगर लॉन्ग पूछ लिया जाता है तो 200 शब्दों में इसको लिखा जा सकता है। ओड के इतिहास के बारे में, बैलेट के इतिहास के बारे में, एपिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में। अगला सेगमेंट अगर देखा जाए आपके सिलेबस का, तो ये क्या है आपका कोपलेट, क्वाट्रेन, स्टेंजा फॉर्म है, स्पेंसेरियन स्टेंजा, चौसेरियन स्टेंजा, टर्सेट, ओट्टावा राइमा, डिजेन स्टेंजा, वंजिन स्टेंजा एंड रूबाई एटसेट्रा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि अगर हम देखें कि व्हाट इज वंजिन स्टेंजा, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वंजिन स्टेंजा। इसको हम एक और भी नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं वंजिन सनेट। वंजिन सनेट क्या है, अब इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये बताना होगा कि वंजिन स्टेंजा किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, अलेक्जेंडर पुश्किन के द्वारा, जो कि इटालियन पोएट था, जिसने एक वर्ष नॉवेल लिखा था यूजीन वंजिन।
लेकिन अंग्रेजी में इसका खूबसूरती के साथ प्रयोग किया गोल्डन गेट में विक्रम सेठ ने। इस तरह से ओटावा राइमा के बारे में भी पूछा जा सकता है, टर्सेट के बारे में चौसेरियन स्टेंजा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज चौसेरियन स्टेंजा, गिव एन एग्जांपल ऑफ चौसेरियन स्टेंजा। तो चौसेरियन स्टेंजा को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया? ओरिजिनली चौसेरियन स्टेंजा वास्तव में चौसर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि मूल स्टेंजा जो है ये फ्रेंच पोएट्री का है। एक मॉडिफिकेशन के साथ चौसर ने इसको पेश किया और उसी के नाम पर बना क्या ये चौसेरियन स्टेंजा पाम। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन होंगे और आपको बताया जाएगा विद एग्जाम्पल किस तरह से लिखना। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या होगा, दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ क्लास चलेगी। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा उसको ऑब्जेक्टिव में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उसको जो है डिस्क्रिप्टिव वे में किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। अगला सेगमेंट है डियर ड्रामा। ड्रामा क्या? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, ड्रामा का संक्षिप्त इतिहास, जेनर्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के जो है कितने जेनर्स होते हैं, कितनी विधाएं होती हैं, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है और रोमांस, इन सब के बारे में संक्षिप्त इतिहास की चर्चा करते हुए अब जैसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज ट्रेजेडी, जस्ट गिव इट इन द लाइट ऑफ एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। अरस्तु के पोएटिक्स के अनुसार ट्रेजेडी क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ट्रेजेडी पढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ साथ ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है या हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको किस तरह से डिस्क्रिप्टिव मोड में ले जाएं। एक अब की बार पिछली बार के अलावा एक नया न्यू एंट्री कमीशन ने दिया है और वो 4 चीजों की पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर 1918 के सिलेबस में नहीं था, कॉलोनियल लिटरेचर भी नहीं था, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ये अब की बार के सिलेबस में ऐड ऑन हुए हैं, जोड़े गए हैं। इसके बारे में संक्षेप में इतिहास और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर कब आया, कॉलोनियल लिटरेचर क्या है, इसके बारे में, और इनके साथ कौन कौन से राइटर हैं। अगले सेगमेंट की अगर हम चर्चा करते हैं जिसको हम पोएट्री सेक्शन कहते हैं, तो डियर ये याद रखिएगा ये जितनी भी पोएम्स हैं इनके डेट ऑफ राइटर और इसके साथ साथ इसके स्टेंजा फॉर्म, हर पोएम में फिगर ऑफ स्पीच क्या है। पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट की केवल 1 से लेकर के 26 लाइनों को ही पढ़ना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये मिल्टन की पोएम है। डन का कैनोनाइजेशन है। रेप ऑफ लॉक कैंटो सेकंड। ग्रे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे और वर्ल्ड इज टू मच विद अस। शेली का है ओड टू द वेस्ट विंड स्काईलार्क। अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो हम बड़े आसान से संक्षेप में ये पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर इसी पोएट्री सेगमेंट को हमें कन्वर्ट करना है रिटन सेगमेंट में तो कैसे। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि व्हाट इज मेटाफिजिकल पोएट्री, व्हाट इज मेटाफिजिकल पोएट्री with reference to canonization। अब इसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। अब आपको इसमें जॉन डन ने लिखा तो है, लेकिन जॉन डन के जीवन परिचय को देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो यह है कि मेटाफिजिकल पोएट्री है क्या और मेटाफिजिकल पोएट्री किसके रिएक्शन में इसका जन्म होता है।
मेटाफिजिकल कंसेप्ट क्या है, इसके साथ साथ हम मेटाफिजिकल पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी चर्चा करते हुए हम कैननाइजेशन की कुछ लाइनों को कोट भी कर सकते हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कैननाइजेशन की ओपनिंग लाइन 3-4 लाइनें दे दी जाएं और पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन इट विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ कैननाइजेशन। तो आपको डियर ये लिखना, इसकी प्रैक्टिस, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आपको सूचना देनी है, जिसकी चर्चा हम लोग लाइव क्लास में डेली जो है लेते रहेंगे और करते भी रहेंगे। किड्स की है दो, एक तो बैलेड है और एक ओड है, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। अब अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात करूं तो ग्रेशियन अर्न में यह पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में किस स्टैंजा फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आपको मैं बताऊं, इसमें डिजेन स्टैंजा फॉर्म का प्रयोग हुआ है। डिजेन स्टैंजा ओरिजिनली जो डिजेन स्टैंजा है ये फ्रेंच पोएट्री का है, और डिजेन का मतलब होता है डिक्स, डिक्स दैट इज 10 लाइन्स। तो 10 लाइनों की जो कविता है जो फ्रेंच पोएट्री में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, अंग्रेजी पोएट्री में सबसे बेहतरीन तरीके से इसको किट्स ने इंट्रोड्यूस किया, और परफेक्ट एग्जाम्पल है डिजेन स्टैंजा का उसका ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। इसमें एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा सकता है। तो मैंने कहा कि ये तो जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न की 4 लाइनें दे दी या फिर 2 लाइनें दे दी और उसको पूछ लिया आपसे एक्सप्लेनेशन। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है डियर। टेनिसन का है ब्रेक 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 यूलिसीज। ब्रेक 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 अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखा जाए तो किसकी याद में लिखा, इसमें क्या कहना चाहता है, यूलिसीज किस तरह का ये मोनोलॉग है कि लिरिक है, सनेट है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एलियट की वेस्टलैंड, और ये ध्यान रखिएगा कि वेस्टलैंड पूरी 5 सेक्शन नहीं है, इसमें फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन 5 नहीं है डियर। रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डची है, प्रोस्पिके है, एर्नाल्ड का डावर बीच, मेमोरियल वर्सेस, W.B. येट्स का सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंशियम। अगले पोर्शन की अगर बात कर लें हम तो आर्डेन के है इन द मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, फिलिप लार्किन की वांट है, और विटमैन की, वाल्ट विटमैन की वो कैप्टन माई कैप्टन, फ्रॉस्ट की बर्चेज है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। अब इस पर ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रॉस्ट, give brief information about Frost and also tell how Frost poem contains surface meaning and below the surface meaning with reference to stopping by woods on a snowy evening। प्रश्न ये आ जाए कि फ्रॉस्ट की कविताओं के 2 अर्थ होते हैं, एक तो सतही अर्थ होता है और दूसरा below the surface meaning, that is the true meaning of his poetry। और किसके संदर्भ में इसको आपको व्यक्त करना है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। तो जब पोएम को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा सरफेस मीनिंग एलॉन्ग विथ बिलो द सरफेस मीनिंग, तो आपकी समझ में आ जाएगा। हाँ, अब आपको थोड़ा सा लिखने का अभ्यास डियर जरूर करना होगा। आर्यन टैगोर की गीतांजलि की 2 पोएम है, पोएम नंबर 11 और जो है 12। इंडियन पोएट जो एस्कील एंड सीम एस्कील, उनके 2 पोएम है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, फिलॉसफी, कमला दास के इंट्रोडक्शन, रामानुजन की ओबिचुअरी है, और वोलकॉट के अ फार क्राई फ्रॉम, डेरेक वोलकॉट, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अगला सेगमेंट है आपका फ्रांसिस ऐसे पोर्शन, प्रोज सेक्शन में फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रुथ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑफ ट्रुथ है।
क्वेश्चन इससे जो है लॉन्ग पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लैकोनिक स्टाइल। क्वेश्चन, व्हाट इज लैकोनिक स्टाइल। लैकोनिक स्टाइल, इसको डियर एफोरिस्टिक स्टाइल भी कहते हैं। व्हाट इज एफोरिस्टिक स्टाइल या फिर टर्स स्टाइल। और इसका फादर कौन है? फ्रांसिस बेकन है। आप स्टडीज की कुछ लाइनें दे दी गई, मान लीजिए ओपनिंग लाइन ही दे दी और उसको पूछ लिया एक्सप्लेन कीजिए आप इसको 125 वर्ड्स में। तो जब पूरे फ्रांसिस बेकन के आप स्टडीज ऐसे को पढ़ाया जाएगा तो उसमें उसकी स्टाइल की भी चर्चा होगी। लैकोनिक स्टाइल क्या होती है। अब फ्रांसिस बेकन के बारे में एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का फादर बेकन को क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में आपको जो है क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे। पेरियोडिकल एसेइस्ट की शुरुआत किसके साथ होती है? एडिसन के साथ। एडिसन के दो ऐसे हैं, सर रोजर एट होम, विल विम्बल, और इसके साथ रिचर्ड स्टील का स्पेक्टेटर क्लब कैरेक्टराइजेशन के लिए, या स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स के बारे में पूछे जा सकते हैं और उनके कैरेक्टराइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लैम्ब के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई लैम्ब इज कॉल्ड प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट। तो ये क्वेश्चन आपको लिखवाया जाएगा और उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी। ईबी ल्यूकस का है टाइट कॉर्नर्स, एजी गार्डिनर का है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, बर्ट्रैंड रसेल का है रोड टू हैप्पीनेस, रिचर्ड राइट का है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेज। अब टीचर की जिम्मेदारी क्या होती है? इतने सारे सिलेबस तो दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से, इस समंदर में से काम के मोती चुनना ये टीचर का काम होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये it is must, it is imperative for everyone just to select that platform and select that teacher who is really a teacher, who is efficient, who has better caliber and who has depth of knowledge of his subject. Only that teacher can do justice with his thoughts. केवल वही टीचर सक्षम हो सकता है। मैं नहीं कहता कि मैं सक्षम हूं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये फैसला तो आप ही को करना होगा ना। यू आर टू डिसाइफर, यू आर टू स्क्रूटिनाइज हु इज बेटर। और जिसके ऊपर आप अपना फेथ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या वो इतना कैलिब्रेटेड है कि आप के मकसद को पूरा कर सकता है? नाउ दिस इज यू टू डिसाइड। अगला सेगमेंट अगर देखा जाए तो फिक्शन पोर्शन है। जोसेफ एंड्रयू है, जेन ऑस्टिन, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, डिकेंस है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्डी का मेयर ऑफ कैस्टरबेज। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं ये बताना हमारा काम होगा। कल से परसों से हम लोग वो डेली लाइव होते रहेंगे। यूं तो रेगुलर बैच को अनाउंस किया गया है 5 अगस्त से, लेकिन इन बिटवीन इस टारगेट ऑन और टारगेट विद आलोक के जितने भी टीचर हैं, जिनके बारे में हमारे आदरणीय रवि सर बता ही चुके हैं और करीब करीब रोज ही आपके सामने रूबरू होते हैं, फैसला आपको करना है। हेमिंगवे का है ओल्ड मैन एंड द सी, स्टीनबेक का है द ग्रेप्स ऑफ रेथ, राजा राव कांथापुरा, चिनुआ अशेफ थिंग्स फॉल अपार्ट, वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डेलोवे। इसमें आपके थीम और मैसेज पूछे जाएंगे। थीम एंड मैसेज, ये जितने आपके नॉवेल हैं इसमें राइटर का संदेश क्या है, उपन्यासकार का, और उसकी थीम क्या है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ड्रामा पोर्शन में आपके शेक्सपियर के 3 हैं, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस और मैकबेथ।
इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे? जैसे अगर मैं कहें कि राइट द कैरेक्टर ऑफ द हीरो ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस एंटोनियो, एंटोनियो के का चरित्र चित्रण कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। और व्हाट टाइप ऑफ प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस इज, ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है या क्या है? व्हाट इज द, ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द हेमेरेटिक ट्रेट इन शाइलाक, या फिर मैकबेथ की हेमरशिया क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। ड्राइडन ऑल फॉर लव, बर्नार्ड शॉ का है आर्म्स एंड मैन। प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि हाउ बर्नार्ड शॉ कंडेम्स हायर लव एंड कंसेप्ट ऑफ वॉर विद स्पेशल रेफरेंस टू आर्म्स एंड मैन। आर्म्स एंड मैन के संदर्भ में ये बताइए कि बर्नार्ड शॉ ने हायर लव को किस तरह से खारिज किया है, कंडेम किया है, और युद्ध के बारे में आर्म्स एंड मैन में बर्नार्ड शॉ ने क्या विचार व्यक्त किए हैं। गाल्जवर्दी है डियर, ये गाल्जवर्दी, इसका एक ही प्ले है जस्टिस। यूजीन ओनील का है हैरी एप, गिरीश कर्नाड का है वदन, और हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, मिलर का ऑल माय सन्स। तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन इसके बारे में तो आपको केवल फर्स्ट स्टेप में मिलेगी, और वो क्या है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जो आपका एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा, और फिर इसी में से ये टीचर को सोचना होगा कि कौन सा प्ले इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है और उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप देख लीजिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या 10 के बारे में जो है लिखवाया जाएगा? और 10 के बारे में एक्सक्यूज में, तब तो केवल ड्रामा पोर्शन पर ही लंबा वक्त होगा। अभी मैंने क्या कहा कि टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि इस 10 प्ले में से उसको सेलेक्ट करे और उस प्ले के ऊपर ऐसे क्वेश्चन बनाए कि वही क्वेश्चन पूरे प्ले को कंप्राइज कर ले। अगले सेगमेंट की चर्चा हम लोग करते हैं। महात्मा गांधी का है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब इतनी मोटी पूरी किताब पढ़ने की बात नहीं है, और पढ़ना भी बेवकूफी है। एग्जॉशन ऑफ एनर्जी एंड टाइम। अब इसके जिस्ट के बारे में आपको बताना होगा, या टीचर को जो है बताना होगा। नेक्स्ट सेगमेंट है डियर आपका लैंग्वेज सेक्शन। तो लैंग्वेज सेक्शन में पंक्चुएशन, स्पेलिंग टेस्ट, वोकैब, सफिक्स, प्रीफिक्स, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन, और केवल लेटर राइटिंग ही नहीं, इसमें डियर नोटिस राइटिंग भी है, नोटिस राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं विदा लेता हूं इस वायदे के साथ कि अब हम लोग रोज मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। बकल टू योर प्रिपरेशन विद एंथुसियाज्म, विद एनर्जी एंड विद फर्वर। पूरे उत्साह के साथ जुटिए। सिलेबस को देख करके घबराइए मत, सिलेबस को स्क्रूटिनाइज करना, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि कमीशन ने जो सिलेबस चेक आउट किया है सबसे बेहतरीन सिलेबस है। सही टीचर का चुनाव करने का ये सिलेबस है। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं, इस वायदे के साथ कि हम लोग रोज मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।